اور عرص حضرت نظام الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے انعقاد کیا۔ طے کرے خلوص و وفا حضرت علامہ مولانا غفران صاحب قبلہ اور ممتاز بھائی ان کے احبا اقربا آپ سبھی کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر اتنے علماء کرام شورائے اسلام آج کی اس مقدس بزم محبت میں تشریف لائے۔ ہندوستان کے اتنے بڑے شاعر سے آپ نے ملاقات کی، میں بہت مشغول ہوں شاعر اسلام جناب اختر کاشف صاحب قبلہ کا، جو بہت تھوڑی سی کمی رہی مائک کی وجہ سے۔ مائک آپریٹر صاحب نے آج اچھی طرح انتظام نہیں کیا کہ وہ خوب کھل کر کے پڑھ سکے۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ القاری اعجاز صاحب قبلہ، حضرت حافظ شاہ اعظم صاحب قبلہ اور پیکر خلوص و وفا حضرت مولانا انوار صاحب قبلہ یہ مقدس شخصیتیں تشریف فرما۔ انشاءاللہ میرے بعد پھر شاعر اسلام اختر کاشف صاحب کی نعت خوانی ہوگی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا دیکھیے تقریر، دیکھیے اب 2 گھنٹہ تو میں بولنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوں کہ سلیگوڑی سے شروع کو چلا پھر یہاں آیا، دن بھر گھومتا پھرتا رہا، 1-2 گھنٹہ سویا اور جو ہے کہ اتنے بدن میں میری طاقت نہیں ہے۔ پہلے خوشخبری سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میری تقریر ہوگی۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آنے والے 6 اپریل کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسماعیل شہید روڈ میں میرا ڈیرا آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، مسجد اقصیٰ سے اور آگے لبے سڑک انشاءاللہ بہت بڑی کانفرنس ہوگی آپ لوگوں کی محبتوں کی زیر سایہ، پیغام خدمت انسانیت کانفرنس۔ پیغام خدمت انسانیت اس لیے کہ بھائی آج کل انسان ہی انسان سے دور ہے، مؤذن امام سے دور، پیر مرید سے دور، بھائی بھائی سے دور، دوست دوست سے دور، خاندان خاندان سے دور، جس میں ہندوستان کی سب سے بڑی خانقاہ مارہیرہ مطہرہ شریف سے حضور سید شاہین حسین میاں صاحب قبلہ برکاتی، مسولی شریف سے حضور سرکار گلزار ملت حضرت علامہ سید گلزار واسطی صاحب قبلہ، سریا شریف سے حضور سید غلام رسول صاحب قبلہ، قنوج شریف سے شہزادہ حضور بہن الرحمان حضرت علامہ مفتی احمد سعید صاحب قبلہ، حسن پورہ سے سید ناہید صاحب قبلہ، پٹنہ ادارے شریعہ کے صدر مفتی استاذ الفقہاء والعلماء حضرت علامہ مفتی محمد حسن رضا نوری صاحب قبلہ۔ تو یہ 6 بزرگ شخصیتیں ہو گئی۔ خطابت کرنے کے لیے جلسے میں حضور سید شواہت میاں صاحب قبلہ مراد آباد، ڈاکٹر جوہر میاں شفیع آبادی، حضرت مولانا فیصل صاحب قبلہ اشرفی بھدوری۔ شاعری کے حوالے سے شاعر اعظم ہندوستان مولانا اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتہ، شاعر اسلام نسیم سحر گیاوی، سہراب قادری اور دیگر جتنے علاقے کے خطباء کرام شورائے اسلام ہیں سب تشریف لا رہے ہیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ سیوان کے زیر اہتمام یہ جلسہ ہوگا۔ مقصد ہے کہ تحریک خدمت انسانیت سے لوگوں کو جوڑا جائے، اس کے لیے کتابچے بھی بانٹے جائیں گے، جگہ جگہ پہ آگے کیا کرنا اس کا پروگرام ہوگا۔ تو انشاءاللہ جتنے پہلے اسٹیج کے علماء بیٹھے ہیں سب کی دعوت ہے، امید ہے پوسٹر میں کہیں نہ کہیں نام بھی موجود ہوگا، اگر چھوٹ گیا ہوگا تو سمجھیے کہ وہ کاتب کی غلطی ہے، میری نہیں ہے نا۔ آپ سبھی کی محبتوں کا میں انتظار کروں گا، کیونکہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آ رہی ہیں تو آپ لوگ تشریف لائیں گے نا، تو انشاءاللہ تشریف بھی لائیں گے اور جلسہ بھی آپ ہی لوگوں کو کرانا ہے۔ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، آج تک کبھی کسی کے پاس گیا نہیں، پوسٹر وغیرہ سب چھپ کر آ گیا ہے اور بہت بڑا خرچ بھی ہے، اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس آ پاؤں، لیکن انشاءاللہ 1 اپریل سے میں کہیں نہیں جاؤں گا جلسے میں، تو یہاں پر
दो मुतहदिक शख्सियतें बैठी हैं, हज़रत अल्लामा मुकराम साहब किबला और एक इस्माइल शहीद तकिया के इमाम साहब किबला वहाँ बैठे हैं, है ना। तो ये दो बड़ी मुतहदिक शख्सियतें हैं, इन बुजुर्गों का साथ मिल गया तो इंशाअल्लाह काम होगा। तो साहब ये जलसे होते हैं और होते रहेंगे। सरकार जब मेराज में गए, मेराज में तो आका चलते जाते और अंबिया इस्तकबाल के लिए खड़े होते जाते। आका का गुजर जहां से हुआ सब इस्तकबाल के लिए चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर फरिश्ते सफ बांधे खड़े हैं, अंबिया सफ बांधे खड़े हैं, सारी दुनिया नबी के इस्तकबाल में खड़ी है। लेकिन साहब जब हम आका की सीरत पढ़ते हैं तो ज़हन कहता है, अक्ल कहती है, सुल्तान रज़ा सारी दुनिया जिसके इस्तकबाल में खड़ी है, फरिश्ते जिसके लिए खड़े हैं, अंबिया जिसके लिए खड़े हैं। एक बार ऐसा हुआ कि आका मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, सहाबा की झुरमुट है और इतने में हम सब की अम्मी जान, आका की दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा चली आ रही है। अब सुनिए, वाकया सुनाना मकसद नहीं, बताना मकसद क्या है। अम्मा हलीमा चली आ रही है। आज तो कोई बेटा माँ का इस्तकबाल नहीं करता, आज कोई बेटा माँ की ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं होता। नारे लगाना आसान है साहब, कलमा पढ़ना आसान है, नबी का गुलाम कहलाना आसान है, लेकिन नबी की सीरत पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। सारी दुनिया नबी के इस्तकबाल में खड़ी है और आका अपनी मुकद्दस माँ के इस्तकबाल में खड़े हो गए, माँ के इस्तकबाल में खड़े हो गए। सहाबा ने किया, आका आप खड़े हैं, तो सहाबा भी खड़े हो गए। कहा, आका आपके लिए हम खड़े होते हैं। ये कौन मुकद्दस खातून है जिनके लिए आज रसूलों का रसूल, नबियों का नबी, कायनात का सुल्तान खड़ा है। आका फरमाते हैं, सहाबा तुझे पता है ये मेरी वो माँ है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था, दूध पिलाया है। सहाबा इकराम से आका फरमाते हैं, सुनो मैंने माँ का इस्तकबाल किया है, तुम भी घरों को जाना, जब तेरी माँ सामने आए तो तुम भी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना। सुल्तान रज़ा आज के इस जलसे से पैगाम देना चाहेगा, आज घरों में माओ की अजमतें घटती जा रही है, आज माओ की नाकदरी होती चली जा रही है, आज हमारी माएँ मोहब्बत के लिए तरस रही है। और सयाहे नामा का कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आका की अजमत के नारे लगाने वालों, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार का डंका बजाने वालों, आज से घरों को जाना, जलसे से लौट कर जाना। अगर तेरी माँ तेरे सामने आ जाए तो खुद भी खड़े हो जाना, बच्चों को भी खड़े कर देना, बीवी को भी खड़े कर देना। तेरे बच्चे तुझसे पूछेंगे, अब्बा हुजूर दादी आई तो आप खड़े क्यों हो गए? कह देना, बेटा मैं खड़ा नहीं होता, मगर जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने माँ के सामने खड़ा होना सिखला दिया है। याद रखना, माँ की मोहब्बत के बगैर, माँ की अजमत के बगैर, माँ की दुआओं के बगैर इंसान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, खुद भी माँ की ताज़ीम करो ताकि तेरे बच्चे माँ की ताज़ीम करे, तुम माँ की ताज़ीम करो ताकि तुम्हारी बीवी माँ की ताज़ीम करे, तुम माँ की ताज़ीम करो ताकि तुम्हारे भाई माँ की ताज़ीम करे। आज बहुत अफसोस होता है, आज माँ बाप औलादों से डर रहे हैं। बेटा सामने आ जाए तो माँ बोलने से डरती है, बेटा सामने आ जाए तो बाप बोलने से डरता है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, कितनी दौलतें आपने कमा ली है, कितना गुरूर है आपको अपनी ताकत के ऊपर? क्या तुम पढ़ लिख कर कुछ बन गए तो माँ को डांट दोगे? क्या दौलत हो गई तो तुम माँ को गालियां दोगे? क्या अल्लाह ने तुझे ताकत दी है तो बाप को धक्के देकर मारोगे? याद रखना, गौर से याद रखना। सुनो सुनो, तुझे पता नहीं है, पता नहीं तो आज सुनो और याद रखो। आका ने सिर्फ माँ का इस्तकबाल ही नहीं किया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत माँ की ताज़ीम के लिए खड़े भी हुए। और आका अपनी नूरानी चादर को कांधे से उतारते हैं, उतार कर जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं, मेरी मुकद्दस माँ, आपकी जगह वो नहीं जहाँ सहाबा बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, आपकी जगह वो है जहाँ आपके बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की चादर बिछी हुई।
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے بھی کبھی اپنی ماں کے لیے چادریں بچھائی ہیں؟ کیا آپ نے بھی کبھی اپنے باپ کے لیے بستر کیا ہے؟ کیا آپ نے بھی کبھی ماں کے لیے بستر کا انتظام کیا ہے؟ آج تو لوگوں کو اتنی فرصت نہیں کہ ماں کی خدمت کرے، آج بچوں کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ باپ کی خدمت کرے۔ یہی وجہ ہے آج ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج باپ کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ سلطان رضا اس لیے کہنا چاہتا ہے، وہ معراج النبی سیاح نامہ کا کانفرنس میں آنے والوں، سدرہ پہ جانا اور آنا بھی نبی کا دیکھو، عرش پہ جانا اور آنا بھی نبی کا دیکھو، اور ذرا مسجد نبی میں بیٹھ کر ماں کا ادب کرنا بھی نبی کا دیکھو۔ اس لیے صاحب ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو نبی کا کردار پڑھائیے، نبی کا کریکٹر پڑھائیے، نبی کی دی ہوئی تعلیمات کا انتظام کیجیے۔ تو صاحب ایک تو پروگرام کا مقصد یہ ہے، دوسرا مقصد یہ ہے عرس۔ آج کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی لگنا چاہیے۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج ہم مزاروں پہ صرف چادریں چڑھانے میں الجھ گئے، آج ہم مزاروں پہ صرف چادریں لے کر جانے میں الجھ گئے؟ صاحب ہم پھولوں کی چادریں مزار پر لے کر جاتے ہیں، ہم کپڑوں کی چادریں مزار پر لے کر کے جاتے ہیں، لیکن سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، چادر چڑھا دیا کام ختم، کپڑے کی چادر چڑھا دیے کام ختم۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ تاکہ پتہ چلے یہ کسی بزرگ کی قبر ہے، لیکن صاحب باقی معاملات، آج ہماری زندگی کا معاملات یہ ہے، چادر چڑھانے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، لوگ چادریں چڑھاتے ہیں مگر جاتے ہیں تو چادریں لے کر جاتے ہیں اور لوٹتے ہیں تو خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، وہ مزار پر جانے والوں، پھولوں کی چادریں مخدوم اشرف کی تربت پر لے کر جاؤ، اور جب لوٹو تو ان کے کردار کی چادر زندگی میں اوڑھ کر کے آؤ۔ صاحب آج افسوس ہوتا ہے، بزرگوں کے نام کی چادر تو سر پر ہے مگر بزرگوں کے کردار کی چادر زندگی میں نہیں۔ یہ صاحب اگر بزرگوں کے کردار کی چادر مل جائے تو کوئی شراب پیے گا، بزرگوں کے کردار کی چادر مل جائے تو کوئی جوا کھیلے گا، بزرگوں کے کردار کی چادر مل جائے تو کوئی زنا کرے گا، بزرگوں کے کردار کی چادر مل جائے تو کوئی سود کھائے گا، کوئی رشوت لے گا۔ آج صاحب لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں، آج تو حالات ایسے ہو گئے، بزنس کرتا ہوں مگر کامیابی نہیں ملتی، ڈاکٹر بن گیا مگر ڈسپینسری نہیں چلتی، عالم مولانا بن گئے مگر کامیابی نہیں ملی۔ طرح طرح سے انسان پریشان ہے۔ سنو ذرا غور سے، پریشانی کی سبب صرف یہی نہیں ہے جیسا آپ نے سمجھا ہے، پریشانی ہوتی ہے لیکن کیا وجہ ہے؟ چادریں چڑھانے والا بھی کہتا ہے ہم پریشان ہیں، پھول چڑھانے والا بھی کہتا ہے ہم پریشان ہیں، سجدہ کرنے والا بھی کہتا ہے ہم پریشان ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضرت خواجہ غیاث الدین حسن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کون ہے حضرت خواجہ غیاث الدین حسن؟ یہ سرکار غریب نواز کے والد محترم ہے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین حسن کا کام بس یہ تھا کہ دن رات ماں کی خدمت کرتے رہتے، جب مؤذن آذان دیتا تو اپنی ماں سے اجازت لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔ کسی نے کہا ہو جانے والے بتا کیا نماز پڑھنے کے لیے بھی ماں سے اجازت لو گے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز کے ابا حضور نے کہا کیا تجھے پتا نہیں ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمنہ خاتون پردے کے پیچھے سے آواز دیتی، اے بیٹے محمد ابن عبداللہ مجھے تیری ضرورت ہے، تو میں نماز چھوڑ دیتا اور ماں کی خدمت کے لیے چلا جاتا۔ آج کس کو فرصت ہے جو ماں کی خدمت کے لیے جائے صاحب؟ آج تو لوگوں کو ماں کی خدمت کے لیے فرصت کہا، ماں انتقال کر جاتی ہے تو فرصتیں مل جاتی ہیں مگر ماں زندہ ہو تو فرصت نہیں ہے۔ باپ انتقال کر جائے تو جنازے میں جانے کے لیے فرصت مل جائے مگر باپ کی خدمت کے لیے فرصت نہیں ہے۔ وہ اسلام کے مقدس شہزادوں، جب تم ماں باپ کی خدمت کے لیے فرصت نہیں نکال پاتا، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں کامیابی نہیں ہے۔ سنو کیا کہا خواجہ غیاث الدین حسن نے، تجھے پتا ہے سجدے کرنے جانے والوں جاؤ لیکن پہلے ماں کو راضی کر کے جاؤ، پہلے باپ کو راضی کر کے جاؤ، ولیوں کی تربت پہ جانے والوں جاؤ لیکن پہلے گھر میں ماں باپ کو راضی کر کے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوتا، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں
होगा उससे भला हिंद के राजा कब राजी होंगे, उससे मखदूम अशरफ कब राजी होंगे, उससे आला हजरत कब राजी होंगे, उससे मुजाहिद मिल्लत कब राजी होंगे, उससे हाफिज मिल्लत कब राजी होंगे। इसलिए तू चाहता है कि अल्लाह वाले भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए, तो सबसे पहले घर जा और अपनी माँ को भी राजी कर ले और अपने बाप को भी राजी कर ले। किसको फिक्र है? ऐसे भी कोई नहीं चाहता कि तकरीर सुने। तकरीर लोगों को अच्छी इसलिए नहीं लगती कि खतीब कहेगा कि नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, नेकी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, और हम लोग ये सब करना चाहते नहीं। टेंशन है, चाहते नहीं है, इसलिए नहीं चाहते, बहुत दबाव है, प्रेशर है, नेक बन गए, अच्छा बन गए। अच्छा साहब, शायरी सुनने में खूब तबीयत लगती है, क्यों? इसलिए शैतान भी जानता है कि भले ये 2-4-5 घंटा भी शायरी सुने, एक शेर तो याद होगा, जान रहा है कि एक है ना। हजरत भी कहते होंगे कि मुझको बैठा के ये सब क्यों बोल रहे हैं, तो मैं हजरत तो नहीं बोल रहा हूँ, तो ये बोल रहा था कि कल सिलीगुड़ी में बारिश हो रही थी और असद इकबाल पढ़ रहे थे और मैं भीग रहा था, तकरीर भी नहीं हुई लेकिन नजराना मिल गया। बहुत अच्छे लोग। तो उन्होंने कहा कि हजरत 6 महीना बाद की तारीख दीजिएगा, आप दोनों आइएगा। तो ये दीवानगी देखकर बेशक नाम सुनिए, मेरे इमाम ने तो हदायत की बख्शिश लिख डाली है ना, हदायत की बख्शिश लिख डाली, और मेरे इमाम ने लिखा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब बात गरीब नवाज की चल गई तो बोलिए कुछ तकरीर कर दूं, इजाजत है? तो अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे, हम भी कोई इतना सस्ता नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? इसलिए जरा दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, है ना। अब मौलाना साहब इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं, अगर इनके घर में जाऊं तो समझिए कि इनके घर से भी तकरीबन 150-200 किलोमीटर से आगे से मैं सफर तय करके आया। तो आप समझिए, और फिर मुझको यहाँ से सफर शुरू करना है सुबह, और अररिया जाना है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी लंबी मुसाफत है। अगर किराया भी जोड़े तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन खैर मोहब्बत ये सब बातें मेरी यही गहरी भैया क्या कहा था सुनिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बा क्या करते थे? माँ की खिदमत करते थे। क्या करते थे? बोलिए ना प्यार से, कि किसकी खिदमत करते थे? और हम लोग किसकी खिदमत करते हैं? जाहिर सी बात है, तो जो करता है अपने दिल से पूछ लेगा, कौन माँ की कितनी खिदमत करता है और कौन बीवी की कितनी खिदमत करता है, कौन किसकी कितनी खिदमत करता है। साहब ये सब को ये बातें याद रखनी चाहिए। लेकिन सुनिए, एक रात हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन कहते हैं, अम्मी जान मैं तो आपका बेटा हूँ, कोई गलती हो सकती है, माफ कर दीजिएगा, लेकिन दिल में कोई बात मत रखिएगा, दिल में कोई बात हो आप अपने इस बेटे से बता दीजिएगा। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन की वालदा है, कहती है बेटा दिल में एक बात है जो बात मुझे सोने नहीं देती। अम्मी जान कौन सी बात है कि बेटा मौजूद और माँ सोने न पाए? माँ ने कहा बेटा हर माँ को खुदा तुझ जैसा बेटा अता करे ताकि उसकी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। लेकिन ये बेटा जब बेटा बड़ा हो जाए तो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि एक दुल्हन उसके घर में आ जाए, एक दुल्हन उसके घर में आ जाए। अब इसके बाद जो मैं तकरीर करने वाला हूँ वो बहुत सख्त है, जो लोग बर्दाश्त कर लेंगे वो बर्दाश्त कर लेंगे, जो नहीं कीजिएगा हाफिज एजाज साहब के हवाले कर दीजिएगा, ताकि वो सब वापिस हो जाए। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन ने कहा अम्मी जान मैं आपका बेटा हूँ और आप अपनी मर्जी से मेरे लिए दुल्हन तलाश कीजिए। अब साहब इस वक्त ऐसा मामला नहीं, आज तो बाप डरता है कि अपनी मर्जी का कर दूं तो बेटा रखेगा भी कि नहीं। आज माँ डरती है अपनी मर्जी से रिश्ता कर दूं तो मेरा बेटा रखेगा भी कि नहीं। ये हाल सिर्फ लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी यही है। माँ सोचती है कहीं रिश्ता कर दिया और मेरी बेटी क्या पता उस लड़की के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। याद रखना इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, आज जो समाज में आवाज़गी के तुम शिकार हो गए हो, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आज तुम जो शादियां कर रहे हो, तुम क्या समझते हो ये तेरी जवानी हमेशा रहने वाली है? तुम क्या समझती हो ये तेरा
हुस्न हमेशा रहने वाला है। तुम सोचती है कि कॉलेज के आवारा लड़कों के साथ चंद रातें कट जाएंगी, तेरी जिंदगी हसीन हो जाएगी। तू सोचती है कि किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाएगी तो नकाब से तुझे आजादी मिल जाएगी। तुझे पता नहीं है अगर तूने ऐसा कदम उठाया तो फिर जिल्लत तेरे मुकद्दर में है। न घर में तेरी इज्जत रहेगी, न जिस घर में जाएगी वहां तेरी इज्जत रहेगी। याद रखना इस्लाम के मुकद्दस बेटे और बेटियों, तू अभी नादान है। क्या पता है तुझे कि इज्जत तो आबरू क्या होती है? तुझे क्या पता कि तुझे तेरी जिंदगी में कौन सी लड़की तेरे लिए बेहतर है? जो लोग अपनी मर्जी से शादियां करते हैं वो रिश्ते कम दिन चलते हैं। जो लड़कियां अपनी मर्जी से भागकर शादियां करती हैं 2 साल बाद उनका तलाकनामा बनकर तैयार हो जाता है। जो लड़के अपनी मर्जी से शादियां करते हैं साहब उनका घर बार भी छूट जाता है और उनकी जिंदगी तबाही की दरीज पे कदम रखती है। फिर कोई औरत फांसी लगा के मरती है, फिर कोई लड़का ट्रेन के सामने कटकर जान दे देता है। इसलिए सुल्तान रजा गुजारिश करेगा वो काम न करो जिससे तेरी दुनिया भी बर्बाद हो और तेरी आखिरत भी बर्बाद हो, बल्कि वो तरीका अपनाओ जो गरीब नवाज के अब्बा हुजूर ने अपनाया है, गरीब नवाज के वालिद मोहतरम ने अपनाया है। कहा अम्मी जान आप जानती हैं कि इस घर में कौन सी दुल्हन आपके साथ रह पाएगी और कौन सी नहीं रह पाएगी। वाह वाह माँ जानती है, बाप जानता है कि मेरे बेटे की जिंदगी कैसी लड़की के साथ कटेगी। माँ जानती है कि मेरी बेटी की जिंदगी कैसे लड़के के साथ कटेगी। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, निगाहें नीची रखो, जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ। ये चंद रोजा जवानी याद रखना एक दिन ढल करके खत्म होगी, फिर तेरा वजूद कहीं का नहीं रहेगा। जमाने में तेरा फिर क्या वजूद रह जाएगा। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों बंद करो ये सब जितनी शादियां हो रही हैं, सारी आवारा गर्दियों को बंद करो। आज तूने मीडिया वालों को मौका दे दिया कि आज लोग लव जिहाद की बातें कर रहे हैं। इस्लाम कोई लव की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में न बॉयफ्रेंड की जगह है, इस्लाम में न गर्लफ्रेंड की जगह है, इस्लाम में कोई ऐसे फ्रेंड की जगह नहीं है। लड़की है तो बगैर निकाह के किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती, और लड़का है तो बगैर निकाह के किसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। वो लड़कियां जो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप उन्हें पता नहीं है मेरा जिस्म मेरी मर्जी का अंजाम क्या है। वो नौजवान जो बोल रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मौलवी मुल्ला कौन होता है पाबंदी लगाने वाला? उन्होंने इस्लाम को सही से समझा नहीं। मौलवी मौलाना किसी पे पाबंदी नहीं लगाता, ये तो वो बताता है जो खुदा ने हुक्म दिया, ये तो वो बताता है जो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा है। मेरा चैलेंज है इस्लाम जैसा प्यारा मजहब पूरी कायनात में तलाश कर ले आओ। सुनिएगा जरा गौर से, पूछिए हजरत मौलाना गुफरान साहब किबला से, हुजूर एक औरत कितनी आवाज से कुरान की तिलावत कर सकती? मौलाना अनवार साहब किबला मिसबाही कहेंगे मुफ्ती साहब एक औरत इस कदर आहिस्ता कुरान पढ़े कि उसकी आवाज घर से बाहर न निकले। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे, समझते तो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोल देते। एक औरत इतनी आवाज से कुरान पढ़े कि घर से बाहर आवाज न निकले। ए इस्लाम में तेरे सदके जाऊं, इस्लाम क्यों? कुरान की तिलावत की बात है। इस्लाम कहता है हम सिर्फ औरतों के जिस्म की ही का पर्दा नहीं करते, बल्कि हम औरतों की आवाज का भी पर्दा करते हैं। जो इस्लाम औरतों की आवाज की कितनी हिफाजत करता है, वो इस्लाम औरतों की इज्जत की कितनी हिफाजत करे। तभी तो साहब कहते हैं ना, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं कलकत्ता के, उन्होंने एक शेर लिखा कि जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है।
चांद पर पहुँचे कर तुम्हें क्यों गुरूर करते हो। अरे आमिना के बेटे की, आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, और उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो। आजकल इस्लाम पे लोग बैठ कर डिबेट कर रहे हैं ना। उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो। अरे जिनके लाए मज़हब ने बेटियां बचाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। अल्लाह अकबर। ऐसे ठीक है, वो तो साहब मस्तान है, नारा वारा याद रखा है। मौलाना नवाज साहब से 200 रुपया लेकर एक ही सेकंड में जन्नत में भेजता भी है। जब जब मुलाकात होती है जी। मेरी अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, अब जरा सा सुनिए। थोड़ा सा मुझे लगा कि अब आप लोगों ने इतना सुन ही लिया है, 10 मिनट और सुनने इजाजत है ना, तो जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोलते सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा ग़ियासुद्दीन हसन की वालदा दुल्हन तराशने के लिए निकली। कहाँ निकली जरा सुनिएगा। हम लोग तो मालदार देख कर जाते हैं, जमींदार देख कर जाते हैं, घर बार देख कर जाते हैं। ख्वाजा ग़ियासुद्दीन हसन की वालदा हज़रत गरीब नवाज की दादी जब दुल्हन तलाशने गई तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर के घर गए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को जानते ना आप लोग? हाँ, सब लोग जानते हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के घर गई और क्या कहा कि कोई ऐसी बच्ची बताइए जो हाफिज़े कुरान हो। कोई ऐसी बच्ची बताइए जो क्या होता, हाफिज़े कुरान हो। कहा अच्छा हाफिज़े कुरान चाहिए, मतलब कहा मैं अपने लिए बेटी तलाशने आई हूँ और बेटे के लिए दुल्हन तलाशने आई हूँ। क्या कहा? अपने लिए, वाह वाह वाह, अपने लिए बेटी और बेटे के लिए दुल्हन तलाशने आई हो। पूछा उन घर की औरतों ने, ये बड़ी माँ ये तो बताइए कि सब लोग दुल्हन तलाशने बहू ले जाने आते हैं, आप बेटी ले जाने आई है, कहाँ फर्क है? जो बहू ले जाने आता है उसकी नजर दौलत पर होती है, जो बहू ले जाने आता है उसकी नजर डिमांड पर होती है, जो बहू ले जाने आता है उसकी नजर चैन पर होती है, जो बहू ले जाने आता है उसकी नजर बुलेट पर होती है, जो बहू ले जाने आता है उसकी नजर बेटी वालों की दौलत पर होती है। इसलिए और इस्लाम ने जहेज मांगना हराम करार दिया। कहा जहेज मांगना भी हराम है, जहेज का पैसा खाना भी हराम है, जहेज की मोटरसाइकिल मांग करके चलना भी गुनाह है, जहेज के पैसे से किसी को खाना खिलाना भी गुनाह है। याद रखिएगा साहब, आज लोग बोले या ना बोले लेकिन हक बात बहुत कड़वी होती है। ऐसे भी मैं मस्जिद का इमाम हूँ नहीं कि निकाल दीजिएगा। वाह वाह वाह, बहुत टेंशन है ना। हाँ, मेरे एक दोस्त है खान साहब, तो मैं पूछा कि बताइए बेटा की शादी किए तो हमको दावत क्यों नहीं? तो पता चला कि ये तो आदमी 3 लाख रुपया जहेज लिया था। तो मैं बोला कि खान साहब कद में छोटे हो लेकिन अक्ल में बहुत बड़े हो, है ना। तो मैं उससे बहुत लड़ाई किया। मैं बोला कि अगर मैं जान जाता तो मैं एकदम आता मिलाद में। तब लोगों ने बताया हजरत ये आदमी बोल पड़ा था कि मुफ्ती साहब को नहीं बुलाएंगे नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। समाज में जीने वालों सोचो, जरा शर्म करो, शर्म। गरीब नवाज के मज़ार पे चादर चढ़ाने जाते हो और उनकी माँ के बताए हुए फरमान को भूल जाते हो, उनके बाप की जिंदगी को भूल जाते हो। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों, जिस गरीब नवाज की वजह से तुझे इस्लाम मिला उसकी
उनके माँ के किरदार को तुम कैसे भूल सकते हो? कहा इस्लाम में मुतालबे जहेज हराम है। सुनो, मैं बेटी ले जाने इसलिए आई हूँ कि तेरी बेटी है, लेकिन जब मेरी बेटी हो जाएगी तो जब तक आपकी बेटी थी खाना आपने खिलाया, कपड़ा आपने पहनाया, बिस्तर आपने दिया, मकान आपने दिया। अब जब आपकी बेटी मेरी बेटी हो जाएगी तो बेटा भी मेरा होगा और बेटी भी मेरी होगी, तो मकान भी मेरा होगा, बिस्तर भी मेरा होगा, कपड़ा भी मेरा होगा, खाना भी मेरा होगा, पलंग भी मेरा होगा। इसलिए हम उस चक्कर में नहीं आए। हमारा मकसद ये है, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज से ये अहद कर लो कि हम अपने बेटे के लिए दुल्हन लाने जाएंगे तो बहू लेकर नहीं, बल्कि बेटी को बेटी बनाकर लाने के लिए जाएंगे। जिस दिन हमारी कौम ने ये सोच लिया कि हम अपनी बेटी को भी बेटी बनाकर रखेंगे और दूसरे की बेटी को भी बेटी बनाकर रखेंगे। जब लोग दूसरे की बेटी को बेटी बना लेंगे तो बोलिए डिमांड का मामला रहेगा? अरे बोलिए ना, रहेगा? जहेज का मामला रहेगा? आप लोग तो यहाँ बोलते नहीं रहेगा, और जहाँ साइन हुए वहाँ ले लिए। मुरीद है ताजुश शरिया के, जहेज ले रहे हैं। मुरीद है कछौसा शरीफ से, जहेज ले रहे हैं। वाली से पाक के मानने वाले हैं, जहेज ले रहे हैं। कलमा पढ़ने वाले जहेज ले रहे हैं। अरे हद तो ये है, हाजी साहब भी है, जहेज भी ले रहे हैं। साहब हद हो गई है। कब तक जहेज के नाम पर बेटियों की इज्जत और आबरू का खिलवाड़ होता रहेगा? आप हिंदुस्तान में ये इतना गंदा रस्म रिवाज हो गया कि आज जहेज के नाम पे हर साल लाखों बेटियां जलाई जा रही है, लाखों बेटियां मारी जा रही है, लाखों बेटियों का मुकदमा चल रहा है, फिर भी ये समाज सुधरने को तैयार नहीं है। लेकिन जरा गौर से सुनना, आज के इस जलसे से जाने वालों तो पैगाम लेकर के जाओ। एक तो माँ की ताजीम करना है, दूसरा बहू नहीं बेटी बनाकर लाना है। वरना याद रखिए, कुछ लोग अपनी बेटी की मोहब्बत में जन्नत में जाएंगे, अब बहू की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। बहू की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह पूछेगा, बता तू अपनी बेटी को बेटी समझता था, दूसरे की बेटी को नौकरानी? अपनी बेटी को बेटी समझता था, दूसरे की बेटी को घर में गुलाम? तेरी बेटी बीमार पड़े तो स्कॉर्पियो से लाके इलाज करे, और दूसरे की बेटी बीमार पड़े तो गाली देकर उसको मैका भेज दे। क्या यही इंसानियत है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, याद रखना, इस्लाम ये इजाजत नहीं देता। जब तक उसकी बेटी थी, लेकिन जब आपके घर आ गई तो आपकी बेटी है। खाने का इंतजाम, पहनने का इंतजाम, रहने का इंतजाम। ए मेरी कौम के नौजवानों, कब तक तेरी बिल्डिंग में दूसरों का अलमीरा लगेगा? कब तक तेरी बिल्डिंग में दूसरों का पलंग लगेगा? बेटा तेरा है, 14 साल तू अपने बेटे को 25 साल कमा कर खिला सकता है, कपड़ा पहना सकता है, पलंग पे सोला सकता है, तो क्या शादी के लिए तू अपने बेटे के लिए अपने घर में एक पलंग नहीं खरीद सकता? आप सोचिए, 5-5 लाख का वलीमा में खाना खा जाते हैं, अब 50,000 के एक पलंग बहू के लिए नहीं खरीद सकते हैं। कितनी शर्म की बात है। कौन कहता है कि 5 लाख का वलीमा कीजिए? किसने कहा कि कर्ज लेकर 50 को स्कॉर्पियो ले जाइए? किसने कहा आपको कि साहब इतनी फजूल खर्ची कीजिए, ऑर्केस्ट्रा नचाइए, डांस कीजिए, भांगड़ा कीजिए? गलत। इस्लाम इन बातों की इजाजत नहीं देता। लोगों ने पूछा, ये सैयदा आप हमारे घर आई है? हाँ, मेरे घर में एक बच्ची है, हाफिज़े कुरान है, और उनका नाम दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुंबई में वजन वाले कम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उनका नाम हज़रत बीबी माहे नूर है। कहा कि वो हाफिज़े कुरान भी है। क्या आप अपनी लड़के के लिए पसंद करेंगी? गरीब नवाज की वालदा ने बीबी माहे नूर को देखा, इनके वालिद मोहतरम के लिए पसंद कर लिया। घर की औरतों ने पूछा, आप
सीरत फातिमा तलाश रही है, ये बताइए सीरत फातिमा वाली बहू मिलेगी तो क्या फायदा होगा? कहती है कि मैंने हज़रत सैयदा फातिमा की सीरत का मुताला किया है। तुम्हें पता है? नहीं पता तो मुझसे सुनो। सरकार मौलाए कायनात से सैयदा फातिमा का निकाह हुआ। कुछ दिनों के बाद सरकार मौलाए कायनात मैदान जंग में जा रहे हैं। अपनी शरीके हयात से कहते हैं, ए मेरी शरीके हयात फातिमा, मेरे लिए रास्ते के लिए कुछ रोटियां बना दो। हजरत सैयदा फातिमा घर में जितना आटा था रोटियां बना देती है, एक नहीं दो नहीं, सारी रोटियां तैयार। कहती है अली आप भी खा लीजिएगा, बाबा को भी खिला दीजिएगा, साथियों को भी खिला दीजिएगा। अल्लाह अकबर। अब हजरत मौलाए कायनात रोटियां लेकर चल पड़े। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 15 दिन के सफर के बाद सरकार मौलाए कायनात वापिस आए। कहा ये फातिमा जोरों की भूख लगी है, एक काम करो कुछ खाना हो तो लगा दो। सैयदा दस्तरखान बिछाती है, पानी रखती है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। मौला अली ने देखा, कहा फातिमा रो क्यों रही हो? कहा रो इसलिए रही हो कि काश मेरे पास आटा होता तो मैं रोटियां बनाकर अपने शौहर के सामने पेश करती, मगर फातिमा के पास आज इतना भी आटा नहीं कि अपने शौहर के लिए एक रोटी बना दे। सरकार मौलाए कायनात ने कहा फातिमा कितने दिन से घर में आटा नहीं है? सुनो, आज एक दिन की बात नहीं, वो इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तेरे घर में एक रोज खाना न बने तो तू न जाने कहां कहां शिकायत करती है। लेकिन सुनो, शौहर का रुतबा क्या होता है, ससुराल का मकाम क्या होता है। सैयदा फातिमा कहती है, ऐ मेरे शौहर नामदार मौलाए कायनात, आप जिस दिन से गए उसी दिन से घर में खाना नहीं है। मौलाए कायनात ने कहा 15 दिन हो गए घर में खाना नहीं। कहा मैंने सारे आटे की रोटियां बनाकर दे दी। मौलाए कायनात रोने लगे। सैयदा ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं खाता रहा और मेरी बीवी घर में सब्र करती रही, मैं पानी पीता रहा, मेरी बीवी घर में सब्र करती रही। ये सैयदा ये बताओ खाना नहीं था तो मैं क्या खबर कर देती, पड़ोसियों से कह देती। सुनो सैयदा फातिमा का जवाब, कहती है ए अली बात सच है, मैं क्या कहती तो अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका आटा भेज देती, मैं पड़ोसियों से कहती पड़ोसी आटा दे देते। मगर जब मेरी रुखसती के वक्त बाबा जान ने कहा था, ए बेटी फातिमा शौहर मर्द के लिए, मर्द औरत मर्द के लिए पर्दा है और मर्द औरत के लिए पर्दा है। ये बेटी शौहर की बात सच मैका नहीं और मैका की बात ससुराल नहीं। ए मेरे शौहर मौलाए कायनात, अगर मैं मैके में खबर करती कि घर में आटा नहीं है, जमाना जान जाता कि अली के घर वाले भूखे रहते हैं। अगर मैं पड़ोसियों से कहती घर में आटा नहीं है, लोग जान जाते अली की बीवी फातिमा भूखी रहती है। जमाना आपको गरीब कहता। मौला अली आपकी मेरे दिल ने गवारा न किया कि मैं किसी से अपने घर की बात बताऊं, ताकि मैका की बात ससुराल में पता न चले और ससुराल की बात मैका वालों को पता न चले। सरकार मौलाए कायनात मचल गए। यही वजह है सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वो इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम भी याद रखना, तेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, शौहर से समझौता कर लेना, या शौहर के अंदर कोई कमी हो तो अपने इखलाक से उसकी इस्लाह करना। लेकिन शौहर की बात मैके में नहीं, मैके की बात ससुराल में नहीं, घर की बात पड़ोस में नहीं, पड़ोस की बात घर में नहीं, बल्कि घर की इज्जत भी बचाना तेरा काम है और घर की हिफाजत करना भी तेरा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला जश्न मेराजुन नबी बाबा कहा सरकार खाजा गरीब नवाज की दादी जान ले, अगर मेरे घर भी सीरत फातिमा वाली बहू जाएगी तो मैका की भी इज्जत बची रहेगी, ससुराल की भी इज्जत बची रहेगी।
मैका की भी इज्जत बची रहेगी और ससुराल की भी, है ना। शायद इस्लाम अख्तर काशिम साहब किबला जहाँ कहीं भी हो, उससे मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मेरे दोस्त जरा सा सोचो हमारी जिंदगी में हम कहते हैं कि साहब आज हमारी औलादें अच्छी नहीं होती, आज हमारी बेटियां नेक नहीं होती, आज हमारे बेटे नेक नहीं होते, आज हमारी औलादें नेक नहीं होती। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जब बाप शराबी हो तो बेटा नेक कैसे होगा? जब माँ सिनेमा देखने वाली हो तो बेटियां नेक कैसे होगी? जरा गौर से सुनिएगा साहब। हजरत बीबी माहे नूर का निकाह हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन से हो जाता है। अब काम क्या है? दोनों घर में मियां बीवी की तरह रहते हैं, लेकिन सच्चे ख्वाजा गरीब नवाज की दादी कहती है ये जो दोनों थे अब इनकी ड्यूटी ये थी, सारी दुनिया सो जाती तो रात में दोनों का मुसल्ला बीत जाता, एक तरफ शौहर का मुसल्ला और एक तरफ बीवी का मुसल्ला बीत जाता। साहब किसी ने पूछा गियासुद्दीन हसन आप रात में मुसल्ला बीवी के साथ बिछा के नमाजें पढ़ते हो? कहा हाँ पता नहीं है। सरकार मौलाए कायनात से किसी ने पूछा हुजूर आप इस्लाम को कैसे कबूल किए? आपने इस्लाम की मोहब्बत आपके सीने में कैसे आई? कहा एक रात में जागा, क्या देखता हूँ एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अम्मी जान हजरत खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रहे हैं। जब मैं इनकी नमाजों को देखा तो मेरे दिल में नमाज की मोहब्बत जाग गई, मेरे दिल में नमाज का प्यार जाग गया। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताओ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, एक साथ मियां बीवी एक साथ बैठकर टीवी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, तो एक साथ बैठकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? एक साथ कुरान की तिलावत क्यों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ ताबीज से ही काम चलाना चाहते हैं। आजकल लोग सिर्फ ताबीज से काम चलाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ताबीज से फायदा नहीं होता, बेशक ताबीजों से फायदा होता है, मगर सीरत फातिमा को कौन अदा करेगा? सीरत मौलाए कायनात पे कौन अमल करेगा? सीरत खदीजतुल कुबरा को जिंदगी में कौन औरत लाएगी? सीरत मुस्तफा जाने रहमत पे कौन अमल करेगा? अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन एक तरफ नमाज पढ़ते और एक तरफ हजरत बीबी माहे नूर खड़ी है। आलम ये हुआ साहब नमाज पढ़ते जाते, जब हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की पेशानी से वो नूर गरीब नवाज की शक्ल में उनकी माँ के पेट में आया, बीबी माहे नूर के पेट में, तो हजरत बीबी माहे नूर कहती है सारी दुनिया सो जाती और मेरा मोईन रात जब ढलने लगती तो पेट में कलमे तैयबा पढ़ा करता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पेट में कलमे तैयबा पढ़ा करता। लोग तो कहते हैं कि 4 साल के बाद बच्चे पढ़ने के लायक होते हैं, लेकिन इस्लाम ने कहा नहीं,